Hello students, today I am going to teach you Python programming and that too of information practices. Information practices आपको पता है कि क्लास 11 एंड 12 में हमारे पास दो ऑप्शन है इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एंड कंप्यूटर साइंस. कंप्यूटर साइंस में वी हैव पाइथन एंड इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में भी हमारे पास पाइथन है, बट हमारे पास डिफरेंट टॉपिक है जो हमें पढ़ने होते हैं. जैसे फर्स्ट फर्स्ट जो इसका मॉड्यूल है उसमें है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम, जिसमें पहला है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट. एंड यू कैन सी हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कॉन्सेप्ट में वी हैव द बेसिक्स जो हमने पहले भी पढ़ा है. अंडरस्टैंडिंग द बेसिक आर्किटेक्चर ऑफ कंप्यूटर इंक्लूडिंग components like CPU, memory. Let me take a pointer. Then like CPU, memory, input output devices. और टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में वी हैव सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ये जो टॉपिक है ये बहुत बेसिक है, बट हम इसके क्या करेंगे, हम इसके MCQ सॉल्व करेंगे सो दैट हमें आइडिया हो जाए कि बोर्ड्स में हमारे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे. नाउ आई एम making videos concerning the things in mind that I have to prepare my students for boards. So whether it is class 10th or class 11 or 12, I will make you prepare about the board examination. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में what topic we have functions and types. like which operating system, जैसे विंडोज़ और लिनक्स में कौन से फंक्शंस हैं. नाउ विल स्टडी अबाउट क्लाउड कंप्यूटिंग. क्लाउड कंप्यूटिंग में हमें क्या पढ़ना है, वी हैव टू स्टडी अबाउट बेसिक्स ऑफ क्लाउड्स एंड सर्विसेज, जैसे ISAS, पास एंड SAAS. इससे PGT कंप्यूटर साइंस के जो एग्जामिनेशन होते हैं इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. और UGC नेट हो या PGT कोई भी हो, KVS, NVS या आर्मी पब्लिक स्कूल वाले एग्ज़ाम, इस सब में ये क्लाउड कंप्यूटिंग के क्वेश्चंस आते ही आते हैं. नाउ हियर वी हैव द फर्स्ट MCQ. What is the which of the following is responsible for carrying out arithmetical and logical operation in a computer? अरिथमेटिकल एंड लॉजिकल ऑपरेशंस हमने बचपन से पढ़ा है. आई थिंक फ्रॉम क्लास 6 and 7 वी हैव दिस कॉन्सेप्ट of, and in ICSE we have since class 3 only, कि we will study about the internal component of the CPU, that is ALU, CU and MU. So we have the option control unit, memory unit, arithmetical logical unit and input devices. So which is responsible for carrying out arithmetical and logical operations? So the answer will be arithmetical logical unit. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच टाइप ऑफ मेमोरी इज नोन एज वॉलेटाइल मेमोरी. तो ये बचपन से पढ़ रहे हैं, वॉलेटाइल, नॉन वॉलेटाइल. वी हैव द ऑप्शन रीड ओनली मेमोरी, हार्ड डिस्क, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड ऑप्टिकल डिस्क. सो वी द आंसर विल बी रैंडम एक्सेस मेमोरी. Random access memory means it is volatile, and read only memory means it will not be deleted even if the power is switched off. That's why it is called non volatile memory. But RAM is a random access memory, means the memory will be deleted once the power will be switched off. Now the next question is, which component is considered as the brain of the computer system? Hard disk, CPU, monitor and keyboard. So CPU is known as the brain of the computer. Now the next question is, which part of the computer system is responsible for storing data permanently? If we want to store the data permanently, हमारे पास दो टाइप की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी, और एक होता है कैश मेमोरी. कैश जो होता है वो बफर स्टोरेज होता है. तो हमें डेटा को परमानेंटली स्टोर करना है, तो वेदर वी विल यूज़ रैम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, हार्ड डिस्क, कैश मेमोरी. सो द आंसर विल बी हार्ड डिस्क बिकॉज वी वॉन्ट टू स्टोर द डेटा परमानेंटली. कैश मेमोरी एक बफर मेमोरी हो गया. Which type of software is used to control the overall functioning of the computer system? The option is application software, system software, utility software and device driver. So overall functioning of the computer system में हो जाएगा
system software. And which is the example of system software? Operating system. Operating system, since our class 3 we are studying that to enter into the computer, or it is an interface between the user and the computer. And we have other thing is application software, like whatever we will use, like we will use MS Office, we will use Java, IDLE, whatever we will use will come under application software. And utility software, what will be the extra software which we will use for our external use, are the utility software. And device driver, for example, we have a printer that we have installed, so to we will use the driver of the printer to make it, to update it and to make the printer work. We will install the device driver of the printer. सो द आंसर विल बी सिस्टम सॉफ्टवेयर. जब भी हम MCQ सॉल्व करते हैं तो हमें सारे ऑप्शंस के बारे में पता होना चाहिए, सो दैट कभी अगर आपने जो क्वेश्चन का आंसर है, कभी दूसरे जो आंसर है उसका भी वो सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन और केस बेस्ड क्वेश्चन बना के उसी ऑप्शन का क्वेश्चन बन सकता है. सो हमें पता है NEP या CBSE जो है वो क्या कर रहा है, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी या CBSE का ये कंसर्न है कि बच्चों को एक एक ऑप्शन के बारे में पता हो. तो हमें ये ध्यान रखना है कि MCQ में जो बहुवैकल्पिक प्रश्न है, MCQ में हमें सारे ऑप्शंस के बारे में पता हो. व्हाट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ अ कंट्रोल यूनिट इन अ CPU? अभी मैंने बताया कि CPU के अंदर क्या क्या होता है, एरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट. तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन क्या होता है? परफॉर्म कैलकुलेशन, कंट्रोल इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन, स्टोर डेटा. क्या होगा? फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर? अभी मैंने बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है. So the answer will be window operating system. What is the primary function of operating system? Operating system क्या करता है? To edit the text document? No. Edit करने के लिए we have other application software. To manage the hardware resource and provide an interface for user? हाँ, ये होगा. I was telling you that operating system is the interface between the user and the computer. To display web page? No, we have a different software which is called web browser for this. To compile program? No, we have different softwares, like we have Java, we have BlueJ for Java, and we have ASP.NET, NetBeans, lots of software to compile the program. Like we have C, C++. In if we want to execute Python, then we have IDLE. Which of the following is not an example of operating system? कौन सा operating system नहीं है? Linux, Windows, Android and Oracle. So we can see Oracle is a database, rest others are operating system. Which of the following is not a type of cloud services? I was telling you that cloud services के questions बहुत important होते हैं. IaaS, SaaS, PaaS and BIOS. So BIOS आप देख रहे, BIOS क्या है? Beginners Input Output System. Means ये जो है जब हम सिस्टम को इंस्टॉल करते हैं तो ये कमांड प्रॉम्प्ट आता है BIOS स्क्रीन, जिसको हम बोलते हैं. What does SAS stand for? तो इसका मतलब होता है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. क्लाउड्स का ये फीचर है सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस. Which cloud service provide virtualized computing resource over the internet? इंटरनेट में वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स कौन प्रोवाइड करता है? तो द आंसर इज IaaS, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. वर्चुअलाइज कंप्यूटिंग रिसोर्स, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. Which of the following is an example of platform as a service? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS. तो एग्जाम्पल होगा माइक्रोसॉफ्ट अज्योर. तो आपको IaaS, SaaS और पास और ये सब का एग्जाम्पल भी पता होना चाहिए. तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस का एग्जाम्पल है माइक्रोसॉफ्ट अज्योर. Now we have Google Drive also which we are using. Amazon is also there. Dropbox is also there. Now another questions, MCQ questions on cloud computing. What is cloud computing? The practice of using a network the practice of using a network of remote servers to store, manage and process the data, or using a computer to manage all your data, or storing data locally on a hard drive, or the physical placement of data server in offices. So the answer will be
The practice of the first one, the practice of using a network of remote server to store, manage and process data. क्लाउड क्या करता है? क्लाउड करता है कि आपके पास जो डेटा है उसको आप स्टोर करके रखते हो क्लाउड्स में, वर्चुअल सर्वर में। जैसे हम गूगल फोटोज़ का यूज़ करते हैं, गूगल ड्राइव का यूज़ करते हैं, गूगल फोटोज़ में हम फोटोज सेव करते हैं, ड्राइव्स में हम अपने डेटा को सेव करते हैं, फाइल्स को सेव करते हैं। नाउ व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम? RTOS का मेन काम क्या है? क्या इसका काम डेटा प्रोसेस करना है विदाउट अ डिले? क्या इसका काम इट यूजेज अ कमांड लाइन इंटरफेस? क्या ये एक कमांड लाइन इंटरफेस यूज़ करता है? इट इज़ यूज फॉर पर्सनल कंप्यूटिंग। क्या ये पर्सनल कंप्यूटिंग के लिए यूज़ होता है? ये जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है। मैंने आपको पढ़ाया है टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी फंक्शनिंग, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का मैंने एग्जांपल भी बताया था। इट वर्क्स ओनली विद ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो इसका आंसर क्या होगा? इट प्रोसेस डेटा विदाउट अ डिले। मैंने ये क्या बताया था? इसकी डेडलाइन होती है। इट हैज़ अ डेडलाइन, मतलब ये कभी डिले नहीं करेगा। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ क्लाउड स्टोरेज? Data can only be accessed from a local network. Data is vulnerable to natural disaster. Files can be, files can be accessed from any device with internet connectivity. You need specialized hardware to use cloud server. तो क्लाउड का मतलब ही होता है कि फाइल कैन बी एक्सेस फ्रॉम एनी डिवाइस विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। Which type of cloud computing allow developer to build, test and deploy application without managing the underlying infrastructure? किस तरह के क्लाउड कंप्यूटिंग में डेवलपर्स क्या करते हैं? डेवलपर्स बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन विदाउट मैनेजिंग द अंडरलाइंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो क्या होगा? प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस में डेवलपर्स डेवलपर्स क्या कर सकते हैं? बिल्ड, टेस्ट एंड डिप्लॉय एप्लीकेशन को बना भी सकते हैं, टेस्ट भी कर सकते हैं और डिप्लॉय भी कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनेजिंग मेमोरी, प्रोसेस एंड डिवाइस इन अ कंप्यूटर सिस्टम? सो द ऑप्शन इज डिवाइस ड्राइवर नो, ऑपरेटिंग सिस्टम यस, बायोस मैंने बताया बायोस इज यूज फॉर फॉर्मेटिंग एंड कंपाइलर इज यूज फॉर एग्जीक्यूटिंग। In which of the following operating system is the kernel is the core part? Window, Linux, both A and B, and MS Office, so both A and B. Kernel is the core part of the operating system. ये मैंने बताया किसका? विंडो और लिनक्स का। द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर, ये एक टॉपिक है आईपी में, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में। द बेसिक कॉम्पोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम में दो चीज़ है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। दीज कॉम्पोनेंट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म द वेरियस फंक्शन ऑफ द कंप्यूटर। द की हार्डवेयर कॉम्पोनेंट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम्स आर, ये मैं आगे बताऊंगी। नेक्स्ट वी हैव, जो आईपी का नेक्स्ट टॉपिक है वो है पाइथन प्रोग्रामिंग, जिसमें हमें देखना है बेसिक्स ऑफ पाइथन। हमें ये सारी चीज़ें देखनी है, बेसिक्स ऑफ पाइथन। कंप्यूटर एप्लीकेशन में भी हमारे पास बेसिक्स ऑफ पाइथन है, बहुत सारे पाइथन की प्रोग्रामिंग है हमारे पास, इफ एल्स लूप है, डेटा टाइप भी है। बट यहाँ पे कुछ टॉपिक्स डिफरेंट है, जैसे हमें फर्स्ट तो हमें कॉमन देखना है इंस्टॉलेशन ऑफ आईडीएलई, और हमें पाईचाम का भी पाईचाम एक क्या है? ऑफिशियल वेबसाइट है ओनली फॉर पाइथन प्रोग्रामिंग। फिर हमें पढ़ना डेटा टाइप एंड वेरिएबल। डेटा टाइप एंड वेरिएबल में जो हमने डेटा टाइप पढ़ा है जावा में, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, लिस्ट, ट्यूपल, सेट्स एंड डिक्शनरी। फिर हमें ऑपरेटर्स पढ़ना है जिसमें अरिथमेटिकल, रिलेशनल, लॉजिकल, असाइनमेंट एंड बिटवाइज ऑपरेटर। फिर हमें कंट्रोल स्टेटमेंट पढ़ना है जिसमें हमें इफ एल्स स्टेटमेंट, लूप्स, फॉर एंड वाइल एंड कंट्रोल फ्लो। कंट्रोल फ्लो मीन्स जब हम ब्रेक एंड कंटिन्यू यूज़ करते हैं, जैसे हम जब कैलकुलेटर बनाते हैं तो जब हमारी सारी कंडीशन ख़त्म हो जाती है तो हम उसे ब्रेक लगा देते हैं, या फिर हमें कंडीशन को फिर कंटिन्यू करना है तो हम कंटिन्यू लगा देते हैं। फिर हमें पढ़ना है फंक्शंस, जिसमें हमें फंक्शन को डिफाइन करना है, पैरामीटर डिफाइन करना है, रिकर्शन का यूज़ करेंगे, स्कोप वेरिएबल पढ़ेंगे। लिस्ट ऑपरेशन पढ़ना है जिसमें हम एक्सेसिंग, स्लाइसिंग, अपेंडिंग एंड मैनिपुलेटिंग लिस्ट पढ़ेंगे। लिस्ट पढ़ेंगे तो हमें थोड़ा डिक्शनरी का पता होगा तो लिस्ट विल बी ईजियर फॉर अस। नाउ देयर विल बी सम क्वेश्चंस फ्रॉम ऑपरेटर्स। Which of the following is an arithmetical operators in programming? So this is ampersand ampersand, this is plus addition, this is less than equals to and this is equals to। तो ये हो गया कंपैरिजन ऑपरेटर।
तो विच इज arithmetical operator, तो addition is the arithmetical operator. Now the next question is which of the following is a bitwise operator? तो bitwise operator में ये अगेन ये क्या हो गया, कंपैरिजन ऑपरेटर और प्लस इक्वल्स टू कंपैरिजन एंड दिस इज नॉट इक्वल्स टू, तो ये हो जाएगा bitwise operator. Sometimes you need to see which operator looks different than other groups, then this will be the answer. Which is the result of expression 7% 2 in Python? आपको ये पता लगाना है कि जब हम 7% 2 करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या होगा. जैसे 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, तो 3 हो गया 0 हो गया, 2 3 जा 6, तो 1 हो गया रिमाइंडर एंड 3 हो गया क्वोशंट. तो यहाँ पे रिमाइंडर मॉड्यूलस का रिजल्ट क्या होता है, रिमाइंडर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर 1. What does the relational operator this signify? मैंने अभी तुरंत बताया था equality operator. Whether the value in the LHS is equal to the value in the RHS. एक होता है equals to, जैसे हम लिखेंगे a equals to 5. अगर हमने लिख लिया a equals to 5 या कुछ भी हमने लिखा x equals to 5, तो हम क्या कर रहे हैं, हम असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ कर रहे हैं, हम x में 5 असाइन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा असाइनमेंट ऑपरेटर. बट यहाँ पे डबल इक्वल मीन्स वी आर चेकिंग वेदर LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो इट इज इक्वालिटी ऑपरेटर. व्हाट डज असाइनमेंट ऑपरेटर प्लस इक्वल्स टू डू इन द स्टेटमेंट a प्लस इक्वल्स टू 5? a प्लस इक्वल्स टू 5 क्या करता है, एड 5 टू a एंड असाइन द रिजल्ट टू a. एड 5 टू a इक्वल्स टू a प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, a में जो वैल्यू है ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 1, तो एक असाइनमेंट हो जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 6 विल बी द आंसर. एड 5 टू a एंड असाइन द रिजल्ट टू a, तो ये a में 5 को ऐड कर देगा. Which operator is used for logical and in most programming language like Python, Java and C++? लॉजिकल एंड दोनों में यूज होता है. जैसे ये हो गया एम्परसेंड, ये हो गया और ये हो गया नॉट, और ये हो गया इक्वालिटी ऑपरेटर अभी हमने पढ़ा. तो विच इज द लॉजिकल एंड, इट इज द लॉजिकल एंड, डबल एम्परसेंड की जो साइन है. नेक्स्ट MCQ क्वेश्चन ऑन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैलिड इफ एल्स स्टेटमेंट इन पाइथन? तो ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है. इफ x ग्रेटर देन y, प्रिंट x इज ग्रेटर, एल्स कोलोन प्रिंट y इज ग्रेटर. इफ x इज ग्रेटर देन y, प्रिंट, यहाँ कोलोन मिसिंग है, यहाँ कोलोन है, यहाँ कोलोन नहीं है, x इज ग्रेटर, ब्रैकेट भी नहीं है यहाँ पे, एल्स प्रिंट y इज ग्रेटर. तो ये तो नहीं होगा, ये नहीं होगा डेफिनेटली. इफ x इज ग्रेटर देन y, कोलोन है, प्रिंट ब्रैकेट x इज ग्रेटर ब्रैकेट क्लोज, एल्स प्रिंट y इज ग्रेटर. तो यहाँ पे एल्स के बाद कोलोन नहीं होता है, तो ये सही होगा. यहाँ पे क्या कर दिया इसने, एल्स के बाद कोलोन लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ये तो पूरा ही गलत है, तो द आंसर विल बी सी. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लूप इन पाइथन? लूप का एग्जाम्पल कौन सा है, वाइल आई लेस देन 5, इफ आई इक्वल 5, डिफाइन लूप फंक्शन फॉर आई ग्रेटर देन 5. तो आंसर क्या हो जाएगा, वाइल आई लेस देन 5. हम जब प्रोग्राम लिखते हैं तो हम प्रोग्राम के शुरू में ही लिखते हैं कि दिस प्रोग्राम विल एग्जीक्यूट इफ एंड ओनली इफ द कंडीशन इन वाइल इज ट्रू. जब तक आई लेस देन 5 होगा तब तक इसके नीचे जो कंडीशन है उसको एग्जीक्यूट करो. विच कीवर्ड इज यूज टू एग्जिट अ लूप इमीडिएटली? हमें लूप से एग्जिट करना, अभी मैंने बताया था स्विच केस ब्रेक, तो हम क्या लगाते हैं, ब्रेक लगाते हैं. और जब हमें कंडीशन को कंटिन्यू करना होता है तो हम कंटिन्यू लगाते हैं, और जब हमें कंडीशन से बाहर निकलना होता है तो हम एग्जिट लगाते हैं. हाउ मेनी टाइम्स द लूप विल एग्जीक्यूट? फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई. ये आपको साफ दिख रहा है कि ये फोर लूप जो हम पढ़ते थे, फॉर आई इक्वल्स टू 5, आई लेस देन इक्वल्स टू, कैसे पढ़ते थे, फॉर आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन इक्वल्स टू 5, आई प्लस प्लस. इसको पाइथन में हम इस तरह लिखते हैं, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट आई. जब तक ये 5 तक वैल्यू जाएगा तब तक क्या करो, प्रिंट कर दो आई. तो ये क्या होगा आंसर 5.
Okay students, I'll continue this video in my next video, and I hope you will understand and you will like my videos. Please go through my channel and like and subscribe. Thank you very much.